In the previous lecture, we have covered about the working on multiple files with the open function. Now, the things which we have to cover in today's lecture is the remaining part of that file management system. So, what was the remaining part according to the syllabus? We have certain things in the file management systems which I am going to describe. What are these things in the file management? Because as per the given in the book or in the content, there is lots of things in the file management system, but we have to work according to the syllabus. So what are the things present in the syllabus that I will explain you. So I'm just checking what are the contents which I am going to cover it today. Reading and writing the files pointer manipulator, error handling in file operation, command line argument. Okay, fine. That we have already done working on a single file, opening file by using open functions when we are working on the multiple files, more than one file. So last lecture which I have ended, that was up to the end of file. So in today's lecture, first of all, I'm going to discuss what is end of file. End of file means the content from where the termination of each and every line or content of the file is get completed. That particular place is called end of file. Means whenever the last link of that file the data whatever the written in that file, the last the last thing, the last part of the data is called the end of the file position. Suppose this is the file and this file is completed at that point, this statement, the statement. So the statement is the position where the end of file is occur. So what is there in the end of file? While reading the data from a file, it is necessary to find where the file ends. Like end of file full stop. The program cannot predict the end of file. If the programmer does not detect end of file, the program drops into the infinite loop. As I have already told you that the compiler must have to find where the end of file will occur, because in certain things the end of file may be changed. If we are adding something in the file, then end of file will be occur at different position than earlier position. If we are deleting some data from the file, then again the position of end of file will be changed. So programmer is unable to identify the end of file, but if programmer does not know about how to detect the end of file, then that program will particularly drop into the infinite loop. To avoid this condition, it is necessary to provide correct instructions to the program that detects the end of the file. Thus, when end of the file is detected, the process of reading data can be easily terminated. Means if we know the end of the file, then we can easily terminate the data uh, on which we are working. So the header file which we use for the particular end of file and for the file management system is an IF stream object such as fin. Fin means file input, which returns value 0 if any error occur.
It means it will give the value 0 if any error occur in the end of the file. Any file operation, and the while loop terminates when fin returns a value of 0 on reaching the end of the file condition. Means if end of the file, let's see the condition, how it will be how it will be putting into the program, how we are going to put it into the program. Suppose if condition is identifying fin 1.eof is not equal to null. If it is equal to null, then it will, what happens, then it will find the position where the file will be terminates. If it is not equal to null, then it will be work as an infinite loop, means it will not it will, this particular if condition does not occurs. Return a non-zero value if end of file condition is encountered, means if end of file condition will be find in that particular data file, then then non-zero value will be given, non-zero value will be returned, otherwise zero value will be returned, which means the loop does not occur and it will be work as an infinite loop. File opening modes, this was already discussed. File opening modes, okay, how we can work with the open to open the file. These are the some file mode operations which I have discussed earlier in the previous lecture. Let us see what are the parameters. Just read these parameters. After that, I will explain each and every parameter. So try to read this. I've already discussed these things in the earlier lecture. First is APP, which is used for append. Append means adding two files, adding the content of two files is called append operation. That I will discuss this with the program after later on. After that, ATE8 is used to end of the file while opening the file. Binary means it works on the binary files. After that, which is use iOS scope resolution in open file for reading only. No create fails if file does not exist, means if the file does not exist and we are opening that file, then this function will execute. iOS no replace open fails if file is already exists, means file is already open and again we are try to open that file. iOS out open file for writing only, means only the writing operation can be performed in the file. Trunk delete the content of the file if exists. If there is a file of that particular name is exists, then we can delete the content of that particular file. Next, the file pointers and manipulator. Each file has two pointers known as file pointer. One is called input pointer and the other one is called the output pointer. Means every file has two pointers, or we can say to connect a file, there will be two positions from which that file could be connected. One is called the input pointer and the other is called the output pointer. The input pointer is used, why input pointer is used, the input pointer is used
The input pointer is used for reading the content of a file, a given file location, and the output pointer is used for writing to a given file. Means input pointer is used to reading purpose and the output pointer is used for the writing purpose. Each time an input or output operations take place, the appropriate pointer automatically in advance. Next, default action. When a file is opened in read-only mode, the input pointer is automatically set at the beginning. Means whenever the file we are opening for the reading mode, then input pointer automatically activates, and from where it start reading at the beginning of the file. Similarly, when the file is opened in write-only mode, means when we are doing something on the file, then the pointer is located at the then the output pointer is set at the beginning of that file. If the file is empty, then it will start from the beginning of the file. If it contains already something, then it starts pointing at that particular position where the new entry can be made. These are the two default actions which we work on the files. One is reading the files, another one is writing the files. The pointer enable at the beginning of the positions whenever we are performing the reading operation or writing operations. Last line, this enables us to write a file from the start. In case of existing file is to be opened, in order to add more data, the file is opened and append mode. अपेंड व्हाट इज अपेंड मोड व्हेन मतलब कि अगर एक फाइल पे हम पे पहले से कुछ डेटा है और उसमें हम कोई नई चीज अगर डाल रहे हैं, नई चीज ऐड कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर फाइल का मोड क्या होता है, वो अपेंड मोड होता है। ठीक है, अगर हम कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो वो हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो गई, और अगर हमारी कोई फाइल पहले से क्रिएटेड है, हम उसमें कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, तो वो हमारा मोड क्या होता है, अपेंड मोड होता है। ठीक है, उसमें पॉइंटर किस पोजीशन पे होता है, एंड ऑफ द फाइल पोजीशन पे। मतलब कि जहां तक हम लिख चुके हैं पहले, मान लो कल हमने किसी फाइल पे काम करा था, कल तक हम जहाँ लिख चुके थे उस जगह पॉइंटर होगा, वो पोजीशन क्या कहलाती है, एंड ऑफ द फाइल पोजीशन कहलाती है। अब उसके आगे से हम नया कुछ भी डेटा उसमें इंसर्ट करना शुरू करेंगे, तो वो पर्टिकुलर ऑपरेशन क्या कहलाता है, अपेंड ऑपरेशन कहलाता है। नेक्स्ट, फंक्शंस फॉर मैनिपुलेटर्स ऑफ फाइल पॉइंटर। ये कुछ फंक्शंस हैं जो तुम लोगों ने अभी पहले भी देखे थे और अब भी देखोगे कि क्या क्या फंक्शंस हैं जो फाइल मैनिपुलेटर्स में यूज होते हैं पॉइंटिंग करने के लिए, पर्टिकुलर फाइल में किसी पोजीशन को पॉइंट करने के लिए। तो पहला क्या है, सीक जी, मूव्स गेट पॉइंटर इनपुट टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन। सीक जी से हम क्या कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लोकेशन पे हम पॉइंटर को मूव करा सकते हैं। मतलब प्रोग्राम में किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम कर्सर को मूव करा सकते हैं, पॉइंटर को उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ला सकते हैं इनपुट करने के लिए। सीपी मूव्स पुट पॉइंटर, यहाँ पे गेट पॉइंटर पे काम होता है, यहाँ पे पुट पॉइंटर पे काम होता है। गेट पॉइंटर कैसा है, इनपुट पॉइंटर है, और पुट पॉइंटर कैसा है, आउटपुट पॉइंटर है। जी और पी का फर्क है, सी जी का मतलब गेट पॉइंटर विच इज एन इनपुट पॉइंटर, seekp put pointer which is an output pointer। तो ये स्पेसिफाइड लोकेशन देता है इनपुट के लिए, ये seekp स्पेसिफाइड पोजीशन देता है आउटपुट के लिए। फिर होता है tellg। tellg gives the current position of the get pointer। तो जो हमने seekg का get pointer देखा था, उसकी करंट पोजीशन कहाँ पे है, वो कौन बताता है हमें, tellg बताता है कि जो भी पर्टिकुलर गेट पॉइंटर पे हम काम कर रहे हैं, मतलब इनपुट पॉइंटर पे हम काम कर रहे हैं, उस इनपुट पॉइंटर की पर्टिकुलर पोजीशन क्या है। मतलब मान लो अगर मैं इनपुट पॉइंटर पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ जब ब्लिंक कर रहा है, तो टेल जी मुझे ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर इनपुट पोजीशन कौन सी, ये पर्टिकुलर पोजीशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टेलपी गिव्स द करंट पोजीशन ऑफ द पुट पॉइंटर। पुट पॉइंटर की मतलब आउटपुट पॉइंटर की जो पर्टिकुलर करंट पोजीशन होगी, वो कौन देता है, टेल पी देता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, हम किसी फाइल पे काम कर रहे हैं,
उस पर अगर हम seekg लगाते हैं, जैसे स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल द स्टेटमेंट इन फाइल डॉट seekg 10 वैल्यू दे दी, मूव द पॉइंटर टू द बाइट नंबर 10, the byte in a file are number beginning from 0, therefore the pointer to the 11th byte in the file. Consider the following statement. मतलब अगर सीजी में मैंने 10 वैल्यू दे दी है, ठीक है, मूव द पॉइंटर द बाइट नंबर 10 तक, 10 पोजीशन तक ये मूव कराएगा, 10 पोजीशन पे वो लेके आएगा। तो जीरो से लेकर अगर उसको 10th पोजीशन कहाँ मिलती है, ये 10th क्या है, ये 10th इसकी मेमोरी नहीं है, ये मत सोचना कि इसकी मेमोरी है। ये 10 क्या दे रहा है, 10 दे रहा है कि 10th इसको जहाँ पे पोजीशन मिलेगी उस पर्टिकुलर प्लेस पे ये पॉइंटर को रख दे। तो 10th पोजीशन कहाँ मिलेगी, 1 2 3 से चलेगी। तो 1 2 3 से अगर मान लो हमारी क्या हो रही है, नंबरिंग स्टार्ट 0 से हो रही है, तो 10th पोजीशन हमें कहाँ मिलेगी, 11th वाली प्लेस पे हमें 10th पोजीशन मिलेगी। ठीक है ना। जीरो से अगर हम काउंट करेंगे, 0 से लेकर 10 तक कितने नंबर हुए, 11 नंबर हुए, तो 10th पोजीशन हमें कहाँ मिल रही है, 11th वाली प्लेस पे हमें 10th पोजीशन मिल रही है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है, ऑफ स्ट्रीम आउट फाइल आउट डॉट ओपन हेलो iOS, हेलो फाइल का नाम है, इस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं और फिर इसमें tellp लगा रहे हैं। ठीक है, मान लो फाइल हमने हेलो नाम की फाइल ओपन कर ली और आउटपुट पॉइंटर के थ्रू हम इसमें क्या कर रहे हैं, आउटपुट पॉइंटर की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट द आउटपुट पॉइंटर मूव टू द एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, अप एंड लगा रखा है। ठीक है, तो मैंने अभी पहले बताया था कि अप एंड पे अगर हमारी कोई फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो अप एंड के थ्रू कहाँ पे जाएगा, उसकी लास्ट पोजीशन पे, ताकि अगर हम उसमें कोई नई चीज इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो कहाँ से करेंगे, लास्ट पोजीशन से ही कोई चीज नई इंसर्ट कर पाएंगे, करेंगे। ठीक है, तो अप एंड कौन सी पोजीशन पे ले जाएगा टेलपी को, जहाँ पे एंड ऑफ द फाइल उसे मिलेगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो ले जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, स्पेसिफाइंग द ऑफसेट्स। स्पेसिफाइंग द ऑफसेट्स में क्या है, अभी तक हमने टेल दी, टेल पी, सीख दी, सीख पी देख लेते हैं। सीख फंक्शंस का क्या काम है, सीख फंक्शन सीख जी एंड सीख पी कैन आल्सो बी यूज्ड विद टू आर्गुमेंट। कि सीख जी और सीख पी को हम दो आर्गुमेंट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे सीख जी क्या कह रहा है, ऑफसेट कॉमा रीपोजिशनिंग। ठीक है, सीख जी और सीख पी में क्या है, दो इसमें पैरामीटर्स दे रखे हैं, ऑफसेट ऑफ रेफरेंस पोजीशन। ऑफसेट कॉमा रेफरेंस पोजीशन क्या है ये, द पैरामीटर ऑफसेट represent the number of bytes the file pointer is to be moved from the location specified by the parameter reference position. The reference position take one of the following three constant defined in the थ्री कांस्टेंट डिफाइंड इन द iOS। बिगिनिंग का मतलब स्टार्ट ऑफ द फाइल, करंट का मतलब करंट पोजीशन ऑफ द फाइल, और एंड का मतलब एंड पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर फाइल। ठीक है, तो ये चीजें क्या हैं, ये हमारे जो भी हम
जो भी हम फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं करंट में, बिगनिंग में और एंड ऑफ द पोजीशंस में, वो पर्टिकुलर हम फाइल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सीजी क्या है, द सीजी फंक्शंस मूव्स द एसोसिएटेड फाइल गेट पॉइंटर व्हाइल सीपी फंक्शंस मूव द एसोसिएटेड फाइल पुट पॉइंटर। ठीक है, सीजी काम करता है गेट पॉइंटर के लिए और सीपी पॉइंट करता है पुट पॉइंटर के लिए, जैसे इनपुट और आउटपुट के लिए। द फॉलोइंग टेबल शोज द सैंपल पॉइंटिंग ऑफसेट्स, कॉल देयर फंक्शंस एफ आउट एंड ओ एफ स्ट्रीम। ठीक है, एफ आउट और ओ एफ स्ट्रीम के थ्रू हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसको आप देख लेते हैं। अभी बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, जरा एक निपट लूंगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर कुछ पोजीशंस हैं तुम्हारी, ये मैं देखता हूँ तुम लोगों के लिए इतना वो है या नहीं है। बुक में देखता हूँ तुम लोगों का कि क्या चीज़ तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम्म, ठीक है, पहले वो समय की बुक में हम देख लेते हैं कि ओपन फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन हमने पढ़ लिए थे। 5 pointers in manipulators। ठीक है, ये फाइल पॉइंटर्स एंड मैनिपुलेटर्स यही मैं बता रहा था तुम लोगों को। अब इसको देख लेते हैं हम, फाइल पॉइंटर्स एंड मैनिपुलेटर्स। उस वाले उसमें नोट्स में मैंने क्या चीज़ें बता दी थी तुम्हें कि हम कैसे पर्टिकुलर डिफॉल्ट एक्शन बता दिया था, फंक्शंस फॉर मैनिपुलेटिंग ऑफ फाइल पॉइंटर। ये चीज़ें स्पेसिफाइंग द ऑफसेट, स्टार्ट ऑफ स्पेसिफिंग, ये चीज़ें मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ स्पेसिफाइंग द ऑफसेट तक। ठीक है, अब इसके जो ऑफसेट्स कॉल हैं वो क्या क्या है कि एफ आउट सी जी आउटपुट मोड में इन iOS बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब गो टू स्टार्ट, करंट का मतलब CUR का मतलब फ्रॉम करंट पोजीशन, एंड गो टू द फाइल, एंड ऑफ द फाइल। और यहाँ पे CGM iOS बिगनिंग मूव टू द M+1 बाइट, ये छोड़ दो तुम लोग, ये मैं प्रोग्राम में ही बताऊंगा। M iOS current go to the M byte for current position, माइनस M go to the बैकवर्ड के लिए है ये, करंट पोजीशन से M बाइट बैकवर्ड, और ये क्या है, एंड पोजीशन से M बाइट बैकवर्ड। ये चाहो तो टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट में मैं तुम लोगों को ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है।
ठीक है, ये टेबल तक मैंने करा दिया है। अब हम देख लेते हैं कि उस पर्टिकुलर बुक में क्या है, डिफॉल्ट एक्शन में क्या है। जैसे हमने इसमें देखा था, डिफॉल्ट एक्शन में क्या चीजें थी। डिफॉल्ट एक्शन में इनने कोई एग्जांपल नहीं दिया था, यहाँ पे मैं तुम्हें डिफॉल्ट एक्शन का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, व्हेन वी ओपन अ फाइल इन रीड ओनली मोड द इनपुट पॉइंटर इज ऑटोमेटिकली सेट एट द बिगनिंग। मीन्स कि जब हम डिफॉल्ट एक्शन किसी फाइल को ओपन करते हैं तो इनपुट पॉइंटर हमारा कहाँ से शुरू हो जाता है, पर्टिकुलर कौन सी पोजीशन से, स्टार्टिंग पोजीशन से हमारा इनपुट पॉइंटर लोकेट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये इनपुट पॉइंटर है ओपनिंग द फाइल, रीडिंग के लिए अगर हम फाइल खोल रहे हैं तो हमारा पॉइंटर कहाँ से रीड करना शुरू करता है, फर्स्ट पोजीशन से। ओपन इन एंड अपेंड मोड, अगर हम अपेंड कोई प्री एग्जिस्टिंग फाइल खोलते हैं तो कहाँ पे जाता है हमारा पॉइंटर, एंड ऑफ द फाइल लोकेशन पे। ये है पर्टिकुलर आउटपुट पॉइंटर, ये हमारा कहाँ पे है, एंड ऑफ द फाइल लोकेशन पे। ठीक है, जो पढ़ाया है वही सब मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, फिर कल तक तुम्हारी ये यूनिट कंप्लीट करवा देंगे। ओपन फॉर राइटिंग, राइटिंग में मतलब अगर कोई नई फाइल अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो राइटिंग कहाँ से शुरू होगी, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द, पॉइंटर कहाँ पे लोकेट करेगा, बिगिनिंग पोजीशन पे। ठीक है, सीक जी, सीक पी, टेल जी, टेल पी, ये मैंने उसमें बता दिए थे अभी। ठीक है, स्पेसिफाइंग द ऑफसेट, ये अब हम देख लेंगे स्पेसिफाइंग द ऑफसेट क्या है। वी हैव जस्ट सीन, इसमें देख लेते हैं। 10th वाला मैंने बता दिया था कि वो 11th पोजीशन पे रीड करेगा। ठीक है, अपेंड अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अपेंड के थ्रू कहाँ पे जाएगा, उस पर्टिकुलर एंड ऑफ द फाइल लोकेशन पे, क्योंकि अपेंड क्या करता है, कहाँ पे लाइक टच करता है, एंड ऑफ द फाइल लोकेशन पे। स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, वी हैव जस्ट नाउ सीन हाउ टू मूव द पॉइंटर टू अ डिजायर्ड लोकेशन यूजिंग seekg function. The argument of these functions represent the absolute position in the file. This is shown, this is shown in the figure, like outline outfile dot cpm. ठीक है, तो m क्या है, एक्शन ऑफ सिंगल आर्गुमेंट सीक फंक्शन। ये कोई पर्टिकुलर फाइल है, स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है, इसमें कुछ m बाइट का अगर डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, so seek function seekg and seekp can also be used with two argument। दो आर्ग्यूमेंट के साथ हम seekg और seekp को यूज कर सकते हैं। ये मैंने अभी भी बता रहा था उसमें नोट्स में। ऑफसेट रेफरेंस पोजीशन, ऑफसेट रेफरेंस पोजीशन मतलब एक जी के लिए, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। द पैरामीटर ऑफसेट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बाइट्स द फाइल pointer is to be moved from the location specified by the parameter reference position. The reference position take one of the following three constant defined in the iOS। तो क्या इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स क्या है, बिगिनिंग के लिए स्टार्ट ऑफ द फाइल, करंट के लिए करंट पोजीशन, एंड के लिए एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, सीजी फंक्शंस मूव द एसोसिएट फाइल गेट पॉइंटर, वाइल सीपी फंक्शन मूव द एसोसिएट फुल पॉइंटर गुड पॉइंटर। सीजी किस लिए यूज होता है, गेट पॉइंटर के लिए, और सीपी किस लिए यूज होता है, पुट पॉइंटर के लिए। ठीक है, ये कुछ वो जो मैंने तुम्हें उस वाली फाइल में दिखाए थे, इसको ये कुछ टेबल्स में कंटेंट है, पॉइंटर ऑफसेट्स फॉल्स हैं ये देख लेना। ठीक है, बाकी हम इन्हें समझेंगे जब हम प्रोग्राम पे वर्क करेंगे किसी। अब नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंशियल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। सीक्वेंशियल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस में क्या है हमारा, मेनली वर्क इसमें पुट और गेट फंक्शंस पे है। ठीक है, पुट और गेट फंक्शंस राइट और रीड के थ्रू हम वर्क कर पाते हैं। जैसे
ठीक है, पुट और गेट पे है, जैसे प्रोग्राम दे रखा है। The function put write a single character to the associate string. Similarly, the get reads a single character for the associate string. Means कि put क्या करता है, write करता है single character string में। ऐसे ही get क्या करता है कि read करता है single character from the given string. The following program illustrates how functions work on the program। देख लेते हैं हम किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, iostream.h, fstream.h, string.h, ये कुछ हेडर फाइल हमें लेनी पड़ेंगी। ठीक है, इंट मेन एक कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप लिया है, कैरेक्टर में 80 साइज का कोई स्ट्रिंग हम एंटर करा रहे हैं, सी आउट और सी इन सिंपल। उसमें लेंथ का हमने फॉर्मूला लगा दिया है कि स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर ले, इसलिए इसीलिए स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल हमने ली है। ठीक है, अब हम फाइल हैंडलिंग वाला काम करते हैं। एफ स्ट्रीम फाइल हमने ले लिया। ठीक है, फाइल में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फाइल डॉट ओपन, जो हमने पहले देखा था, ओपन करने के लिए हमने टेक्स्ट नाम की एक फाइल है, उसे हमने ओपन करा है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं हम उसमें, iOS इनपुट और आउटपुट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। लूप चलाया एक हमने, i इज इक्वल टू 0 से लेकर लेंथ तक का जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है, यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी कि स्ट्रिंग कितनी लंबी है। ठीक है, उसके लिए हमने लूप चला दिया है। लूप चलाने के बाद जो भी लेंथ हमारी स्ट्रिंग के अंदर कैलकुलेट होके आएगी, आई के अंदर जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, उस पर हमने क्या करा है, फाइल डॉट पुट। ठीक है, पॉइंटर को हम वहां पे रखवा रहे हैं, पॉइंटर को हम वहां पे मूव करा रहे हैं। फाइल सीक जी की पोजीशन क्या दे रहे हैं हम, 0th पोजीशन दे रहे हैं। ठीक है, 0 का मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे हम पॉइंटर को रख रहे हैं कैरेक्टर सी एच वाइल। अब फाइल के लिए हम लूप चला रहे हैं। क्या लूप चला रहे हैं कि फाइल कहाँ तक चलता रहे फाइल का, फाइल डॉट गेट सी एच वाइल फाइल सी आउट सी एच, मतलब कैरेक्टर्स को वो काउंट कर ले फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, वो कैरेक्टर्स की काउंटिंग करेगा और मतलब कैरेक्टर्स क्या क्या फाइल के अंदर कैरेक्टर्स हैं। सी एच में क्या वैल्यू आ जाएगी, गेट सी एच का मतलब डॉट गेट ब्रैकेट में सी एच लिखा हुआ है और किस पे वर्क हो रहा है, फाइल पे वर्क हो रहा है कि फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, वो जो भी कैरेक्टर फाइल के अंदर हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसके थ्रू हमने क्या करा था, सीख जी और एक स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू लेंथ कैलकुलेट कराई थी, और सीख जी फंक्शन का यूज करके पॉइंटर को 0 से लेकर जहां तक उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर चल रहे हैं उस कैरेक्टर तक क्या कराया था, फाइल के कंटेंट को रीड कराया था और उसे प्रिंट कराया। नेक्स्ट क्या है, राइट एंड रीड फंक्शंस। द फंक्शंस राइट एंड रीड अनलाइक द फंक्शंस पुट एंड गेट हैंडल्स द डेटा इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, दिस मीन्स दैट द वैल्यू आर स्टोर्ड इन द डिस्क फाइल इन द सेम फॉर्मेट इन विच they are stored in the internal memory. An integer character takes 2 bytes to store its value। चलो ये जो राइट और रीड वाला फंक्शन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अब लास्ट मिनट बचा हुआ है। ठीक है, तो तुम लोग जितना मैंने पढ़ाया है ये पढ़ के देख लेना। ये वाला कंटेंट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ और ये आज का वीडियो लेक्चर मैं पोस्ट कर दूंगा, यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है, कल हम ये करने की कोशिश करेंगे, कल पूरा हो जाए, नहीं होता है तो हम एक आध लेक्चर और ले लेंगे।